Hallelujah. Praise you, Jesus. Shalom. Greetings in the name of Yeshua, our King. Glad to be back again with yet another edition of our Bible study, which we go online every Wednesday. We are dwelling on the book of Matthew, and we are on chapter 17. प्रभु का धन्यवाद देते हुए हम आगे बढ़ेंगे, प्रार्थना के माध्यम से प्रभु को धन्यवाद दें, and let's glorify his name. We thank you, Lord God, for this beautiful day that you have blessed us with. Father, we thank you, Lord, for keeping us safe throughout the week. Thank you for your provisions. Thank you for the favor that rested upon us, Lord God. And we trust, O Lord God, that your word tells us that you are faithful to finish what you have started, Lord God. Master, we commit ourselves into our lives into your hands, Master. Especially this time, O Father God, as we get into study, Lord God. We believe, Father God, that this time has been ordained by you. And we ask you, Lord God, we call upon your precious blood upon every equipment that is here around, O Father God, on the Wi-Fi connection, O Father God, on the electricity, Lord God, on the camera, Lord God, on the notes, O Lord Jesus. Everyone gathered online, Lord God. All those who are already online and all those who are going to join in some time, Lord, we surrender everyone into your hands, Master. We call upon your precious blood upon each one of them. Lord Jesus, let your will be done. And we ask you, Father God, to prepare our hearts as we go into your word, Lord. Let your word convict us today. And Lord, what we hear, what we learn, Lord, would be kind of a milestone for us, Lord God, that we will never forget. And Lord, we would live the way you command us to live, Lord. We once again thank you for your word, Lord God. We thank you for all the mercy that you've shown us. Undeserving yet, Lord God, you still are merciful with us, Lord God. And we thank you for that, Lord. Father, we ask you, Father, to open our eyes that we may be able to see with our spiritual eyes, Lord God, what you are trying to show us. Master, let your will be done. All glory belongs to you, Lord God. You alone are deserving and worthy. We ask you, Lord God, to help us retain whatever we learn today. As we commit our time once again into your hands, we make this prayer in the mighty and precious name of Jesus Christ of Nazareth. And all God's people say, Amen. Hallelujah. Praise you, Jesus. Okay. We just saw what the transfiguration, हमने उस बदलाव के बारे में देखा जो प्रभु के शरीर में आया था, और वहां पर जो कुछ चेलों के साथ जो कुछ स्कॉलर या कुछ जो थियोलॉजियन मानते हैं वो प्रभु के प्रिय थे, प्रिय सभी थे, लेकिन ये तीन खास करके प्रभु पे जान छिड़कते थे। इसीलिए प्रभु ज्यादातर जो बातें हैं, भेद के बातें हैं, वो इन्हीं पर जाहिर करता था। हालेलुया। और आज का भी वही प्रॉमिस है, वही वादा है हमसे कि जो भी प्रभु से प्रेम करता है वो सब कुछ अच्छा ही करता है, और वो भेद और वो राज हम पर जाहिर करता है। हालेलुया। तो प्रभु से प्रेम करें, और वो बातें जो कल तक गुप्त थी वो सारी बातें हमें बताएगा। हालेलुया। एंड टुडे वी सी दैट it's the love of God that has brought us here today for this study, and he is the one who's disclosing all these things, without which it will not be possible. So we give him glory as we proceed. हमने पिछले मर्तबा देखा था कि एक बात हम जब कह रहे थे कि आज जब हम बाइबल के अध्ययन के बारे में बात करते हैं और उन अध्यायों के बारे में, चैप्टर्स के बारे में बात करते हैं, कहते हैं कि अभी मत्ती का 16 खत्म हुआ, 17 पे हम जुड़ गए, ठीक है, 17 में हम यहाँ से यहाँ तक का वचन हम पढ़े। तो ये जो विभाजन हुआ, डिवीजन हुआ चैप्टर्स और वर्सेस का, ये शुरुआत से नहीं था। जब बाइबल को इकट्ठा किया गया था, अलग अलग जो किताबें थी उनको इकट्ठा किया गया था, उनका उनको संगठित किया गया था, तभी ये अध्याय नहीं थे, ये वचन नहीं थे अलग से।
ये एक किताब थी। ये लगभग 16वें ईस्वी में प्रभु के पश्चात, ओके, ईसा ईसा इसमें ईस्वी में वो क्या कहते हैं उसको जोड़ा गया इसमें, और फिर ये बाइबल में हमें देखने को मिलता है। आज वो आसान हो गया है, क्योंकि जब हम बाइबल का अध्ययन करते हैं और हमको किसी को बताना होता है तो हम कहते हैं ये फलाना वचन में जाओ, आसान हो गया है ना। वरना हम कहते कि चलिए यशाया की किताब में जाते हैं, और वो ढूंढते ढूंढते शायद 1 घंटा वहीं पे बीत जाता, क्योंकि हमें पता नहीं चलता कि कौन सा वर्स है, कौन सा पैराग्राफ है। तो ये आसान कर दिया है। मेरा ऐसा मानना है ये पवित्र आत्मा ने ही मनुष्य के दिमाग में इसको डाला, ताकि जो आने वाले भविष्य के जो विश्वासी हैं, जो शिष्य हैं, चेले हैं प्रभु के, वो आसानी से वचन का अध्ययन कर पाए। हालेलुया। तो that was just trivia where we dwelt upon. We said that in the 16th century is when the verses and the chapters were added. Okay. Now, पुनः एक बार फिर से हम उस हमारे टॉपिक पे आते हैं। वहां पर जब हमने देखा, प्रभु के वचन में बताया गया कि उनका जो चेहरा था वो प्रज्वलित हुआ, वो तेज से भर गया। There was light on his this thing, and it was so powerful that it shone like the sun. एक मानो कि हम सूरज को देख रहे हैं, उसी तरह से वो उसके कपड़े भी एकदम प्रज्वलित हो उठे, और वो अलौकिक एकदम उसका शरीर दिख रहा था। It was amazing. It was supernatural, and they could not see their faces. They literally fell to the ground, and then they realized that they had transformed. Remember, वो पहचान पाए ये कौन थे। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जो उनका जो अलौकिक जिस्म है, उनका जो ग्लोरियस बॉडी है, वो चेंज नहीं हुआ, वो वही चेहरा था। सिर्फ उनका जो the medium, if it was flesh, now it is the glorious body. That is what changed. The rest, everything was same. That is where they could recognize. शिष्य उन तीनों को पहचान पाए। हालेलुया। तो वो तेज जो उन पर था, वैसा ही कुछ शरीर हमें भी मिलेगा प्रभु के आने के बाद। हालेलुया। तो इसका हम राह देख सकेंगे। जो सचमुच में विश्वास में है, we can look forward to a glorious body like that. ऐसे ही तेजोमय शरीर के लिए, अलौकिक शरीर के लिए हम इंतजार कर सकते हैं। हालेलुया। तो लेकिन उससे पहले क्या हम प्रभु के उस कटोरे से पीने के लिए तैयार हैं? Are we ready to drink from the cup of Christ? Are we ready to go through what Jesus went through? Because आने वाले दिन और मुसीबत भरे होने वाले हैं। अभी अगर हम छोटी छोटी बातों में हम क्या कहते हैं, ढेरों उसका ये करते हैं, यहाँ वहां भागते हैं, वहां भागते हैं, तो आगे चलकर अगर तकलीफ पर तकलीफ आएंगी तो उस वक्त क्या करेंगे? What are we going to do then? It's going to be difficult. So let us pray that God gives us that strength to endure. पौलुस का वो प्रार्थना याद है, उसने कभी नहीं कहा प्रभु ये मुझे इस दर्द से, इस तकलीफ से छुटकारा दे दे। उसने कहा कि मुझे ये तकलीफ सहने के लिए शक्ति दे। Give me strength to endure it. Can that be our prayer today? Because I think the new role model that we have, as Paul correctly said, he says this then in 1 Corinthians, where he says that look to me as I look to Christ. So मेरे ख्याल से वो तकलीफ में भरा हुआ था, वो तो मनुष्य था ना। हम प्रभु के बारे में कह सकते हैं अरे वो तो प्रभु परमेश्वर का पुत्र था, लेकिन पौलुस तो आदमी था ना। तो याद रखें, उसने कभी नहीं कहा, एक अच्छे मतलब प्रतिष्ठा वाले जीवन से वो आया था, प्रभु का शिष्य बना, and then lost everything in the sense where there was no food, there was no money. There were times when he was almost left half dead. मार पीट कर उसे अधमरा करके फेंक दिया जाता था, जेल में काल कोठरी में पड़ा रहता था, बेड़ियों में पड़ा रहता था।
लेकिन फिर भी उसने प्रभु को कभी नहीं छोड़ा, प्रभु का साथ नहीं छोड़ा। हालेलुया। वो जानता था कि वो प्रभु के वचन के लिए बेड़ियों में है। हालेलुया। क्या हम प्रभु के वचन के लिए बेड़ियों में हो सकते हैं? बहुत सारे सवाल है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगर if we are looking forward to that inheritance, that glorious body, but there is a step or there is a hurdle that we have to cross, drinking from the cup of Christ. Hallelujah. हमें वो अलौकिक शरीर चाहिए, और वो अलौकिक शरीर चाहिए क्योंकि वो अलौकिक शरीर हमको प्रभु के साथ बिताने के लिए चाहिए। हालेलुया। उठाए तो सभी जाएंगे, जो दुष्ट हैं वो भी उठाए जाएंगे, लेकिन उस वक्त मापदंड अलग होगा। जो प्रभु के साथ हैं उनको अलग किया जाएगा, और जो दुष्ट हैं उनको अलग किया जाएगा। Two separate eternities, one in heaven and the other one in hell. Hallelujah. So it depends. Are we ready to inherit? हम क्या तैयार हैं? देखिए प्रभु की प्रार्थना परमेश्वर से वो क्या मांगता है। आइए यूहन्ना रचित सुसमाचार, John, Gospel of John, chapter 17, verse 24. Let's look at that. यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 17वां अध्याय उसका 24वां वचन। Father, I desire that they also, whom you gave me, may be with me where I am, that they may behold my glory, which you have given me, for you loved me before the foundation of the world. Hallelujah. देखा क्या परमेश्वर प्रभु यीशु क्या कह रहे हैं कि मैं चाहता हूं कि जो तुम जिन लोगों को तूने मुझे दिया है प्रभु, वो मेरे साथ रहे। हालेलुया। कितनी अच्छी बात है कि वो चाहते हैं कि हम उनके साथ रहें। तो ये चीजें हैं, और वही लोगों को जो उनके साथ रहेंगे वही ऐसे ही अलौकिक क्या कहते हैं शरीर वो हमें देने वाला है। एंड दिस इज व्हाट ही हैज इन स्टोर फॉर अस, ऑल दोज who drink from that cup, who trust him, who love him. Hallelujah. That's what he has in store for us. क्या हम जब हम आए थे सीधे हमारा महिमा मंडन हुआ या होगा? नहीं। हालेलुया। याद रखें, हम जब हमें सुसमाचार दिया किसी ने, या किसी कारणवश हमारे जीवन में किसी ने कहा कि हम प्रार्थना करेंगे, कोई चमत्कार हुआ और हमने विश्वास करना शुरू किया, प्रभु के पास आने के लिए तरीके अनगिनत हमारे लिए शायद होंगे, अलग कारणों से हम प्रभु के पास आए होंगे, लेकिन सचमुच अगर वह हृदय आज प्रभु के लिए रख रहे हैं तो यकीन मानिए हम उस वक्त शिष्य नहीं थे, हम उस वक्त सिर्फ विश्वासी थे, विश्वास करते थे। That is why he does not want believers anymore. He said, go and make disciples. Now these disciples, he wants to promote them further. Doing what? He wants to give them glory. Hallelujah. Do we want his glory? Yes. From being believers to disciples and now to his glory. I'm sure we all are looking forward for that. That's the progression he wants to. वही चाहता है कि हम इसी तरह से बढ़े, हमारा भी महिमा मंडन हो, हम भी उसी तरह से महिमा में प्रभु के साथ आए। That's what he wants to have for us. And वो कभी मुमकिन है जब हम चीजों पर काबू पाएं। When we overcome, it is only then that we will be able to see his glory. And there is one more thing that we have to understand. Remember, as we get into discipleship, the disciple journey also is difficult. We go through a lot, and that is the time when we immerse ourselves. जब हम अपने आप को, अपने समय को ज्यादा से ज्यादा प्रभु के वचनों में हम डूबे रहेंगे, ज्ञान से हम बढ़ते जाएंगे, प्रभु के वचन का ज्ञान, प्रभु के आने वाले राज्य का ज्ञान, प्रभु के उन भेदों का ज्ञान जो सिर्फ और सिर्फ कलीसिया को दिया हुआ है। हालेलुया। तो वो सारे जब वो ज्ञान बढ़ेगा, और यकीन माने वो समय अलग होगा। यकीन नहीं आता है। हम एक वचन देखते हैं, पहले कुरिन्थियों का 13वां अध्याय 9 से लेके 12 तक का वचन पढ़ते हैं। 1 Corinthians chapter 13 verses 9 to 12. पहले कुरिन्थियों का 13वां अध्याय उसका 9 से लेके 12 वचन।
For we know in part and we prophesy in part. But when that which is perfect has come, then that which is in part will be done away. When I was a child, I spoke as a child. I understood as a child. I thought as a child. But when I became a man, I put away childish things. For now we see in a mirror dimly, but then face to face. Now I know in part, but then I shall know, just as I also am known. हालेलुया। हमारा जो ज्ञान है अभी परमेश्वर के वचन का, कोई भी इस पृथ्वी पर नहीं कह सकता कि मैं प्रभु के वचन को पूरी तरह जानता हूं। हालेलुया। हम शेखर भैया को जानते हैं, हमारे बीच हैं वो, लेकिन हमेशा वो भी वचन का अध्ययन करते हैं। हालेलुया। मैं तो उनको बोलता हूं कि ही इज वॉकिंग बाइबल, क्योंकि कभी भी उनसे पूछिए, कभी भी वो बिना बाइबल खोले आपको बता सकते हैं। हालेलुया। बट इवन ही सेज आई डू नॉट नो एवरीथिंग दैट इज देयर। सो व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स दिस, दैट व्हाट वी नो टुडे, आर नॉलेज, हमारा ज्ञान बढ़ेगा वो दिन आने पर। हालेलुया। हम थोड़ा जानते हैं लेकिन सारे भेद जान पाएंगे अगर हम डटे रहें, अगर हम प्रभु में रहें, तो उस दिन अलग ज्ञान होगा हमारा, हमारे ज्ञान बढ़ेगा। जिन चीजों को हम नहीं जानते थे वो सारे भेद प्रभु हम पर खोलेगा। हालेलुया। those things, those times are going to be different. And एक सिर्फ ज्ञान वो नहीं कि जो हम क्या कहते हैं बाइबल के बारे में जानेंगे, हम उन लोगों को भी मिलेंगे। यहाँ पर शिष्य देख रहे हैं, चेले देख रहे हैं, किसको? मूसा और एलिया को। हालेलुया। हम भी देख पाएंगे, आप देखेंगे, हम देखेंगे। हालेलुया। उनसे बातें करेंगे। How wonderful is that? Moses, Elijah, Abraham. Just imagine David. We're going to sit and discuss with him. How was it? How did he feel, and what was going through him when he vanquished Goliath? Hallelujah. ये सारी बातें उनसे होने वाली हैं. Are you excited that we are going to meet up with these people, the heroes of the Bible? हाँ, वो दिन आ रहा है जब हम इन लोगों के साथ बैठ के विचार विमर्श करेंगे. We will talk with them. That is what God has in store for us. Hallelujah. All those who had been faithful to his cause, and the faithful, he says, those who love me, everything happens for the good. Hallelujah. And what is coming is good. Remember, God himself. The word good comes from God, or the word God comes from good. Because without good, there is no God. And without God, there is no good. Hallelujah. So that has to be there within us. Remember this. We're going to meet them, and that's the joy that we have. Let's take it ahead. We will read now from Matthew chapter 17, verse 9 onwards. Now, as they came down from the mountain, Jesus commanded them, saying, "Tell the vision to no one until the Son of Man is risen from the dead." And his disciples asked him, saying, "Why then do the scribes say that Elijah must come first?" Jesus answered and said to them, "Indeed, Elijah is coming first and will restore all things. But I say to you that Elijah has come already, and they did not know him, but did to him whatever they wished. Likewise, Hallelujah. the Son of Man is also about to suffer at their hands." Hallelujah. एक हमने बहुत बड़ा क्या कहते हैं भेद को देखा. We just saw the mystery of the transfiguration. Here is another mystery. Hallelujah. एक के बाद एक खुलासे. This is very exciting again, where God is talking about, Jesus is talking about Elijah. Hallelujah. ये टॉपिक आ गया है. और अक्सर यहाँ पर प्रभु की जो बातें हैं बहुत लोग समझ नहीं पाते, बहुत लोग समझ नहीं पाए. मैंने भी जब शुरू किया था इस बात को वर्बटम जैसा है वैसा मैंने मान लिया और कहा अरे ये तो एलिया ही आया था. अगर आप अगर क्या कहते हैं यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का
एक छवि बनाए, पिक्चर बनाए अपने मन में, तो देखें एलिया कैमल का जो ऊंट का जो खाल था उसका वस्त्र पहनता था, और उसके पास एक क्या कहते हैं, चमड़े की एक बेल्ट होती थी कमर पे, ठीक है। वही वैसा ही पोशाक यूहन्ना बपतिस्म लेने वाला भी पहनता था। लगभग वैसे ही उसके तौर तरीके थे, उसके तेवर बिल्कुल वैसे ही थे। वो एकदम वाइल्ड किस्म का इंसान था, हालेलुया, और हट्टा कट्टा इंसान था एलिया। और उसी तरह से यूहन्ना बपतिस्म देने वाला भी वैसे ही था। तो ये समझना और इसको समझकर एक्सेप्ट कर लेना कि वह दोनों एक ही हैं, यहां हमारी गलती होती है। हालेलुया। ये भेद क्या है इसको हम थोड़ी देर में देखेंगे, लेकिन उससे पहले यहां पर प्रभु ने कहा, वो जब नीचे आ रहे थे, कहां से? पहाड़ी से। ट्रांसफिगरेशन हो चुका है, उन्होंने वो अलौकिक दृश्य देखा। वो सारी बातें देखने के बाद जब नीचे आ रहे थे, तो प्रभु ने उनसे कहा, द लॉर्ड टोल्ड देम, किसी से कहना मत, परमेश्वर के पुत्र को, मतलब टिल द सन ऑफ मैन, मतलब मनुष्य के पुत्र को जब तक वो जिंदा ना हो जाए तब तक ये बातें मत कहना। ये प्रभु ने ऐसा क्यों कहा? why did he say this? Now this, हमने देखा एक बात को, ये जो ट्रांसफिगरेशन था ये मसीहा को कंफर्म करने के लिए था कि प्रभु यीशु ही मसीहा है। हालेलुया। कितनों को कंफर्म किया? यही 3 लोगों को, है कि नहीं? आइए एक चीज को देखते हैं, ये 3 लोग क्यों थे, ये 3 लोगों को बताने का क्या कारण था, और फिर क्यों कहा कि ये आने वाले दिनों तक मत बताना करके, जब तक मनुष्य का पुत्र जीवित नहीं हो जाता। व्यवस्था विवरण, ड्यूटरॉनमी चैप्टर 17 वर्स 6, व्यवस्था विवरण उसका 17वां अध्याय उसका 6वां वचन, ड्यूटरॉनमी चैप्टर 17 वर्स 6। इसको देखते हैं क्या लिखा है। Whoever is deserving of death shall be put to death on the testimony of 2 or 3 witnesses. He shall not be put to death on the testimony of 1 witness. हालेलुया। 3 गवाह यहां पर प्रभु ने बना लिए, और 3 गवाहों के बीच में उन्होंने अपने मसीह होने का प्रमाण दे दिया, प्रूफ दे दिया। हालेलुया। ये इट इज कीपिंग इन लाइन विद द ओल्ड टेस्टामेंट, द स्क्रिप्चर। वो बात उनको कहता है कि उन्होंने 3 लोग कम से कम चाहिए, 2 से अधिक लोग चाहिए, कम से कम 3 जो गवाह दे सके, और ये गवाह उन्होंने बना लिए। लेकिन कहा कि अब मत कहना। क्यों मत कहना? क्योंकि प्रभु यीशु मनुष्य के पुत्र थे, लेकिन अब तक मसीहा नहीं बने थे। हालेलुया। इसको हमने पहले हमारे क्लास में देखा है कि मसीह प्रभु यीशु कब बने। ये मसीह होने का क्या प्रमाण है, या कि उसकी परिभाषा क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन ऑफ मसीहा और मसाया इज दिस, दैट the anointed one who came to die for others. हालेलुया। दुनिया में भी एक मसीहा का डेफिनेशन है, परिभाषा है, और वो क्या है? वो है कि दूसरों को बचाने वाला, उसे भी मसीहा कहा जाता है। लेकिन यहां प्रभु सिर्फ बचाने वाला नहीं है, वो अपने पापों को हरने वाला है। हालेलुया। वो अपने पापों को अपने आप पर लेकर मौत के घाट उतार दिया जाएगा, लेकिन वहां नहीं रुकेगा, फिर जीवित हो उठेगा। हालेलुया। दैट इज द मसाया, द क्राइस्ट। हालेलुया। इसको जानना जरूरी है। मसीहा is a Hebrew word and Christos is the Greek word. ये बात को याद रखें, दोनों का वही मतलब है। Both mean the same, the anointed one who died for others. Hallelujah. ये बात याद रखना। तो ये चीजें हैं हमको याद रखनी है। प्रभु यीशु अब तक मसीह नहीं बने हैं, क्योंकि अब तक वो जीवित हैं, शरीर में हैं। हालेलुया। और वो कब बने देखते हैं, उसका भी प्रमाण। इस बात को याद रखें कि ये जो मसीह है, ये जो क्या कहते हैं क्राइस्ट है,
ये एक पदवी है, टाइटल है, ये प्रभु का क्या कहते हैं दूसरा नाम नहीं है. इट्स नॉट अ सरनेम कि जीसस क्राइस्ट बीइंग हिज सरनेम. नो, इट्स नॉट हिज सरनेम, इट्स अ टाइटल. आगे पढ़ते हैं. रोमियो का किताब खोलते हैं, उसका पहला अध्याय, उसका 4वां वचन. Romans chapter 1 verse 4. And declared to be the Son of God with power, according to the Spirit of holiness, by the resurrection from the dead. Hallelujah. Unless Jesus was risen from the dead, he was not Christ. और यही बात उन्होंने वहां पर कही शिष्यों से नीचे आते समय. उसे कहा तब तक मत बताना उनको, क्योंकि उसके बाद मैं सचमुच अपने आप को, मैं तुमसे ये पहले क्यों कह रहा हूं, ताकि तुम्हारा विश्वास बन सके और तुम मेरे लिए गवाह ठहरे जा सको. हालेलुया. आज हमें ये पता है, क्या हम प्रभु के लिए गवाह बनेंगे? ये दुनिया नहीं जानती है कि प्रभु जी उठे हैं, आज वो जीवित परमेश्वर हैं. हम जानते हैं, आप जानते हैं. क्या हम गवाह बनेंगे? हालेलुया. प्रभु को दोबारा देखना है, उसके तेजोमय रूप को देखना है, उसके प्रज्वलित हुए कपड़ों को देखना है, उसके चेहरे को देखना है. क्या हम तैयार हैं? Only those who overcome, only those who are good witnesses for him will be able to see that vision, that presence. Are we ready for that? There's a huge ask. If we are still bound with earthly things, very difficult. Material things still interest us. All these things that are there, paraphernalia around us, people, if they still interest us, I think it's going to be difficult. हम अपने आप को उन्हीं चीजों में उलझाए हुए हैं. Hallelujah. We need to do what we need to do, but that does not mean that we get so engrossed that our entire attention, our entire time, हमारा पूरा समय उन चीजों के पीछे जाता है. Hallelujah. खाना जरूरी है, इसका यह मतलब नहीं है हम पूरा दिन खाते रहते हैं, है कि नहीं? वो नियम हमें पता है. हमें साफ सुथरा रहना है, इसका यह मतलब नहीं है कि पूरा दिन हम नहाते बैठते हैं. हालेलुया. उसके लिए समय होता है. उसी तरह से प्रभु का समय है और वो समय हमने उनको देना है. यदि अपने आप को ट्रेन ना करें, अपने आप को अगर उस डायरेक्शन में न डालें, तो मुश्किल है आगे, क्योंकि तैयारी नहीं होगी हमारी. उस वक्त हम सोचेंगे कि हम तैयारी करेंगे करके. मुश्किल है. हालेलुया. क्योंकि जो आने वाले दिन है, जैसा मैं बार बार कहता रहा हूं, मुश्किल वाले दिन है. देखिए आगे क्या कहता है. यहां पर नीचे आते आते हमारे जो 3 मित्र हैं, कौन? हमारे बड़े चेले पतरस, याकूब और उसके छोटे भाई यूहन्ना. इन तीनों ने प्रभु को पूछ लिया कि प्रभु, ये जो फर्जी हैं, ये जो शिक्षक हैं, टीचर्स हैं, ये क्यों कहते हैं ऐसा कि ये सारी चीज होने से पहले एलिया को आना है? ऐसा क्यों कहते हैं? अब जैसा मैंने कहा था, इसमें एक राज है, और अगर हम खोजे नहीं तो प्रभु ने भी थोड़ा सा हमारे लिए मुश्किल खड़ी कर दी. वो कहना क्या चाहते हैं? हालेलुया. Why should Elijah come before that day? Why should Elijah come? Why should Elijah come first? मुझे याद है जब मैं नया मसीह में जुड़ा था, और उस वक्त जब हमारी संगति होती थी, one was wiser than the other, तो हम में से थोड़ा सा ज्ञान जिसके पास था, वो हमें क्या कहते हैं ज्ञान देता. उसका आना जरूरी था. किसका? एलिया का आना जरूरी था, क्योंकि वो मरा नहीं था, इसके लिए उसको मरना जरूरी था. हालेलुया, प्रेज गॉड. चलो ठीक है, वो भी एक तरह से सही है, क्योंकि फ्लैश एंड ब्लड कैन नॉट एंटर हेवन. बट कैन आई टेल यू दिस? Elijah is not in flesh and blood. Hallelujah. He's been transformed already. Enoch has been transformed already. One death has to be there. That's what the word of God says. So,
ये इसको अगर हम मान के चले कि एलिया मरने के लिए आ रहा है, अरे तो फिर हमें प्रभु का जो योजना है, प्रभु का जो मिस्ट्री है, वो जो राज है, इसको समझने के लिए आगे कोई गुंजाइश ही नहीं छोड़ा. We have left no scope to understand that mystery, that we don't even know that there is a mystery in the first place. Hallelujah. But to what should I say, a hungry mind, वो हर वचन में सवाल पूछेगा, और सवाल पूछने पर उसे तुरंत जवाब नहीं मिलता, उसे खोजना पड़ता है, और वो खोजते खोजते तब प्रभु कहता है ये है उसका जवाब. हालेलुया. ये मैं अपनी आप बीती आपको बता रहा हूं, मेरी गवाही आपको दे रहा हूं. मेरे साथ ऐसा ही हुआ है. ऑन द फेस ऑफ इट मुझे पहली बार में कभी नहीं समझा, और मैं ऐसा समझता हूं हमारे सबके साथ ऐसा ही होता होगा. पहली बार में कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन लगे रहना है, उसको बार बार पढ़ना है. प्रभु दयालु है, वो जब देखते हैं कि ये छोड़ नहीं रहा है जब तक इसको नहीं मिले, है ना, दैट इज कॉल्ड रेसलिंग विद गॉड. एंड वी से, लॉर्ड, टिल आई नो दिस आई विल नॉट लीव इट. He is merciful. He loves a believer. He loves a disciple who is hungry to know about his truths. He wants to reveal it, but he wants to reveal it to only those who are hungry. वो जो भूखे हैं उन्हीं को वो निवाला देना चाहता है. किसका? वचन का, वचन के ज्ञान का निवाला. वो रोटी जो कभी सूखता नहीं, खराब नहीं होता. हालेलुया. क्योंकि वो रोटी है, आसमान और पृथ्वी टल जाएगा, ये नहीं टलेगा. क्या? प्रभु का वचन. हालेलुया. That's what he wants to give us, and with an understanding to that word. Hallelujah. Let's move forward. अब ये जो बातें हैं, अब हम एक सिरे से in line we will look at 2-3 Bible verses. Okay, we just first read that and then try to fathom, try to understand. हम समझने की कोशिश करेंगे ये प्रभु क्या कहना चाहता है. हालेलुया. ठीक है. यहां पर 3 क्या कहते हैं वचन पहले देखेंगे. ये लगभग एक ही संदर्भ में है, इसको समझेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे. ठीक है. हम पहले देखेंगे मलाकी के किताब से, मलाकी का 3रा अध्याय, उसका पहला वचन. मलाकी chapter 3 verse 1. Malachi 3 verse 1. Behold, I send my messenger, and he will prepare the way before me. And the Lord whom you seek will suddenly come to his temple, even the messenger of the covenant, in whom you delight. Behold, he is coming, says the Lord of hosts. Hallelujah. अब अगर मैं आपसे पूछूं ये किसके बारे में कह रहा है? Hallelujah. Hold your thoughts. We will read another verse. मलाकी का ही उसका 4था अध्याय, chapter 4 verses 5 and 6. मलाकी chapter 4 verses 5 and 6. मलाकी का 4था अध्याय, उसका 5वां और 6वां वचन. Behold, I will send you Elijah the prophet before the coming of the great and dreadful day of the Lord. And he will turn the hearts of the fathers to the children, and the hearts of the children to their fathers, lest I come and strike the earth with a curse. Hallelujah. Praise God. अभी थोड़ा सा बातें खुल रहा है ना? Now we are trying to understand a little bit. Now here the word is very clearly mentioned. I will send the prophet Elijah. एलिया को मैं भविष्यद्वक्ता एलिया को पहले भेजूंगा. हालेलुया. वो उस भयानक दिन से पहले, प्रभु के प्रकोप वाले दिन से पहले आपको, आपके हृदयों को वो छेदेगा और फिर आपको पलटने पर, आपके मन फिराने पर वो मजबूर करेगा. हालेलुया. ये बात यहां तक की समझ में आ गई हमको? Praise God. I believe that each one of us has understood up till here. Now this I spoke about chapter 4 verse 5 and 6. Hallelujah. The same thing has been repeated in 3.
It is talking about Elijah. Hallelujah. We'll read that again. Chapter 3, verse 1. Behold, I send my messenger, and he will prepare the way before me. And the Lord whom you seek will suddenly come to his temple, even the messenger of the covenant, in whom you delight. Behold, he is coming, says the Lord of hosts. Confusion थोड़ा क्या है यहाँ पर? That he will go before me. है ना? That he will go before me, a messenger going before me. But अगर उसको ध्यान से देखें, that he will suddenly come into the temple. फिर यहाँ पर फिर वो अलग हो जाता है. Suddenly come into the temple. क्या ये हुआ है? ध्यान से एक बार फिर हम मत्ती का 17 उसका 11 और 12वां अध्याय वचन पढ़ते हैं. Matthew chapter 17 verses 11 and 12. See what Jesus says here. Very carefully listen now. Jesus answered and said to them, Indeed, Elijah is coming first and will restore all things. But I say to you that Elijah has already come, and they did not know him, but did to him whatever they wished. Likewise, the Son of Man is also about to suffer at their hands. Hallelujah. अब प्रभु ने थोड़ा सा मुश्किल खड़ी कर दी यहाँ पर. कहा हम तो एलिया के बारे में बोल रहे हैं, एलिया आने वाला है. हालेलुया. प्रभु यहाँ पर कह रहे अरे एलिया तो आ चुका है. हालेलुया. लेकिन इसको ध्यान से देखिए, इट्स ऑल प्ले ऑफ वर्ड्स. इट इज फॉर दोज डिसर्निंग डिसाइपल्स. ये उन शिष्यों के लिए है जो ऐसा हृदय रखते हैं परमेश्वर के लिए, जो खोजेंगे और सिर्फ उन्हीं को मिलेगा ये सच. हालेलुया. ये सच थोड़ा छुपा हुआ है. इस बात को हमने जानना जरूरी है. हालेलुया. आपको पता है कि ये बात कि एलिया आ चुका है, ये प्रभु ने 2 बार बताए इसी मत्ती रचित सुसमाचार में. हालेलुया. 2 बार बताए यही बात को. मैंने क्या कहा आपसे? जब एक बार प्रभु कहते हैं तो वो जरूरी है. जब 2 बार उसको दोहराते हैं, इसका मतलब बहुत बहुत जरूरी है. हालेलुया. आइए उस वचन को भी देखते हैं. मत्ती रचित सुसमाचार उसका 11वां अध्याय उसका 13 और 14वां वचन. हालेलुया. Matthew chapter 11 verses 13 and 14. For all the prophets and the law prophesied until John, and if you are willing to receive it, okay, go ahead. He is Elijah who is to come. Hallelujah. He is Elijah who is going to come. हम चलिए फिर से एक बार हम क्या कहते हैं मत्ती 17 में चलते हैं और इस बार एक एक शब्द को हम बारीकी से देखते हैं. 11 and 12. 17, 11 and 12. Matthew chapter 17 verses 11 and 12. Jesus answered and said to them, Indeed, Elijah is coming first. एक मिनट. Elijah is coming first. प्रभु यीशु आ चुके हैं. अगर वो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला ही एलाइजा था, तो प्रभु का वचन, प्रभु के शब्द कैसे होने चाहिए थे? एलाइजा आ चुका है और वो सब कुछ सुधारेगा. लेकिन यह क्या कह रहा है? इंडीड एलाइजा हैज टू कम. यकीनन एलिया को पहले आना है, सभी चीजों को दुरुस्त करना है. मगर मैं आपसे कहता हूं एलिया आ चुका है. हालेलुया. ये थोड़ा सा शब्दों का समझ हमको होनी चाहिए. हालेलुया. अभी हम वापस चलते हैं कहां पर? 11वें अध्याय में, जहां पर एक शब्द में पूरा मतलब है और वो छोटा सा शब्द है. उसको समझना बहुत जरूरी है. एक बार फिर से मत्ती रचित सुसमाचार 11वां अध्याय उसका 13 और 14वां वचन. For all the prophets and the law prophesied until John, and if you are willing to receive it. एक मिनट. Prophesied until John. Hallelujah. If you, now this is what you have to remember.
इफ यू आर रेडी टू रिसीव इट, कोई किसी ट्रांसलेशन में लिखा है इफ यू आर रेडी टू एक्सेप्ट इट, एक्सेप्ट इट व्हाट? एक्सेप्ट द टेस्टिमनी of the word. If you are ready to accept it, into brackets, the testimony of the word, Elijah has already come. Hallelujah. अब ये इट शब्द में ही राज है। प्रभु के जवाब में, प्रभु के स्टेटमेंट में ही उसने खुलासा कर दिया एक्चुअली, लेकिन वो सिर्फ एक क्या कहते हैं, खोजने वाले को मिलेगा। अब देखते हैं कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के बारे में कहां लिखा है स्क्रिप्चर में। हालेलुया। लेट्स ओपन टू आइजाया चैप्टर 40 वर्स 3। थोड़ा सा आगे पीछे जा रहे हैं, मैं समझ सकता हूं, लेकिन कीप योर माइंड्स ओपन टू अराइव एट दिस। आइजाया चैप्टर 40 वर्स 3, यशाया का किताब, उसका 40वां अध्याय, उसका 3रा वचन। The voice of one crying in the wilderness, prepare the way of the Lord, make straight in the desert a highway for our God. हालेलुया। ये यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के बारे में भविष्यवाणी है। हालेलुया। वो जो दूसरे थे, दो जो हमने पढ़े एलिया के बारे में, वो एलिया के बारे में ही थे, मलाकी के जो वचन में है। हालेलुया। लेकिन अभी प्रभु फिर ऐसा क्यों कहता है कि एलिया पहले आ चुका है? हमें अब इन दो जो हीरोज हैं यहां पर जिनका वर्णन है, उनके बारे में जानना जरूरी है। वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट दे आर गोइंग टू डू। हालेलुया। एक बार फिर से हम मलाकी का 4था अध्याय, उसका 5 और 6 वचन पढ़ते हैं। Behold, I will send you Elijah the prophet before the coming of the great and dreadful day of the Lord, and he will turn the hearts of the fathers to the children and the hearts of the children to their fathers, lest I come and strike the earth with a curse. Hallelujah. This, he is talking about the end times, during the time of tribulation. Hallelujah. You remember those two witnesses? Elijah is one of them. He is coming there. And what is his purpose? आपको पता है, जब एलिया का जब आगमन होगा एक गवाह के रूप में, उस वक्त इजरायली जो यहूदी हैं, वो बहुत सारे लोग यकीनन प्रभु के पीछे आ जाएंगे। हालेलुया। अब इसको समझना जरूरी है कि ये तो बात ठीक है, सब यहां पर हम समझ गए। इसका मतलब है एलिया का रोल क्या है वहां पर? एलिया का रोल उन हृदयों को तैयार करने का है प्रभु के आने से पहले। हालेलुया। बिफोर द लॉर्ड कैन अपीयर, it is the role of that witness, it is the role of Elijah to prepare the hearts of the people. Hallelujah. Then what is the role of John the Baptist? Hallelujah. ये बात जानना भी जरूरी है। एक बार फिर से हम यशाया 40वां अध्याय 3रा वचन देखते हैं। The voice of one crying in the wilderness, prepare the way of the Lord, make straight in the desert a highway for our God. हालेलुया। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का क्या रोल था आपको पता है? उससे भी पूछा गया था, क्या आप एलिया हो? और क्या उत्तर था यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का? नहीं, मैं एलिया नहीं हूं। क्या यीशु झूठ बोल रहे हैं? क्या यूहन्ना को पता नहीं था? नहीं, दोनों सच बोल रहे हैं। लेकिन यीशु जो बता रहे हैं वो समझने के लिए है। क्या दोनों का रोल, किसका? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का रोल और एलिया का रोल सेम है। दे हैव द सेम मिनिस्ट्री।
When Jesus said he has come in the spirit of Elijah, it is what he's trying to tell us is that he has come in the ministry of Elijah. It is to prepare the hearts of the people that they make the path straight, because the kingdom of heaven is at hand. There he says the kingdom of God is at hand. Hallelujah. The church is at hand here. The reigning, the millennial kingdom is at hand there. दोनों का मिनिस्ट्री सेम है. वही स्पिरिट में, एलियह के स्पिरिट में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला एलियह नहीं है, वो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला ही है, लेकिन उनका मिनिस्ट्री सेम है. That is the reason why the spirit, when I was prophesied, when I came into ministry, I was prophesied, or rather when I got baptized, I was prophesied upon that I have the spirit of an evangelist. Hallelujah. That my ministry will be a ministry of an evangelist. The spirit of an evangelist. Hallelujah. So understand this fact. When Jesus said that he is Elijah in the spirit, he is not Elijah reincarnated. Elijah is coming. But he is in spirit, as in the ministry of Elijah. The same traits. And what was the traits? It was to prepare. Hallelujah. Jesus said this. Now, this is what we need to understand. And I'm saying this, I'm so excited about this. If we get prepared when John the Baptist preaches, hallelujah, we wouldn't have to go and wait for conversion till Elijah comes. If the Jews had repented when John the Baptist preached, they wouldn't have to enter the tribulation. Hallelujah. That is what he meant. That is when he said, they did not recognize him and they did to him what they wanted to do with him. Herodias Antipas, remember, he chopped his head off because his mistress, he wanted to please her. Hallelujah. How sad is that? But the merciful God, look at that merciful God, he is still giving them a chance. Last chance. He said, अभी इस विटनेस को सुनो, मन फिराओ, अभी तो तकलीफ होगी, क्योंकि आसान जब मौका था तभी नहीं सुना, अब तकलीफ होगी, क्योंकि जितने अच्छे भविष्य वक्ता तुमको बता कर थक गए, वापस चले गए, बहुतों को तो हमने ही मार दिया, लेकिन अभी एक जो आ रहा है वो मरा नहीं है, इसीलिए उसको तुम इस बार मार दोगे. हालेलुया. कम से कम इस बार तो सुनो उसकी बात, और बहुत सारे सुनेंगे, लेकिन वहां भी भ्रमित होंगे. I do not want, because that's another subject altogether. The devil is then going to raise up, to counterfeit. दो विटनेस वो भी खुद खड़ा करने वाला है, जो चिन्ह चमत्कार दिखाएंगे, और वहां पर लोग भ्रमित होकर उस दोगले जो काउंटरफीट है, जो नकली क्या कहते हैं गवाह है, उनके पीछे चले जाएंगे. और जो यकीन जो वचन पढ़ते आए हैं लेकिन गलत राह पर चले गए थे, वो वचन उनके सामने जब वो दृश्य देखेंगे, गवाह देखेंगे, वो पलट जाएंगे. हालेलुया. लेकिन वहां तक रुकना क्यों है? वहां तक रुकना क्यों है? अब संभल जाएं, क्योंकि यूहन्ना बपतिस्मा वाला जो मिनिस्ट्री है वो हमारे बीच है. He says, make straight the path for Jesus. Make straight what? ये हृदय, इसको सीधा करो, तैयार करो. हालेलुया. प्रभु के आने के लिए तैयार करो, ताकि जब वो आएगा वो अपने शिष्यों को अपने राज्य का काम करता हुआ पाएगा. हालेलुया. Blessed is the man whose master finds him doing his work when he comes. Will we be doing his work when he comes? So prepare that heart. Prepare the way today. Understand this fact that Jesus is trying to tell us, Elijah has already come.
His ministry has already come. And if we have understood that, we will not wait for that day of tribulation to change us. That's going to be dreadful. That's why the word says, till the dreadful day of the Lord. When the word of God says dreadful, हमको वहीं पर भयभीत होना है. Dreadful मतलब भयानक, मतलब खतरनाक, इतना खतरनाक होने वाला है कि अब तक पृथ्वी पर किसी ने न झेला हो. वैसा खतरा, वैसा दृश्य. Hallelujah. We will end our study here today. There is so much more, because there's another topic which starts, and I do not want to get into that topic and stop it halfway. I want that flow to happen. But I'll just recapitulate. हम एक बार फिर से इस अध्याय इस यहाँ तक के जो हमने सीखा उसको हम एक बार पुनः अपने दिमाग में इसको अपने सामने रखते हैं. हमने क्या देखा? हमने देखा कि परमेश्वर यीशु किस तरह से बदल गए, उनका रूप कैसे बदल गया, और वो प्रज्वलित होते हुए कपड़े, उसका चेहरा चमकदार अलौकिक सूरज के प्रमाण का. वो क्यों बता रहे थे? वो प्रमाण दे रहे थे अपने मसीह होने का. हालेलुया. मसीहा होने का वो प्रमाण दे रहे थे. और वो ये कह रहे थे कि मैं कोई आम भविष्यद्वक्ता नहीं हूं, मैं इनसे कहीं ऊंचा हूं. जब वो गवाही खुद परमेश्वर ने दी, बादल के अंदर से खुद वो परमेश्वर ने वो गवाही दी, और इसका चश्मदीद गवाह ये तीन लोग हैं. These are the three who are a witness. Where Peter talks about it, it's not cunning ways, but it's an eyewitness account of what God said, that He is my Son in whom I am well pleased. Hallelujah. And to understand what was the meaning of Elijah and Moses and Elijah. Moses refers or signifies जो लोग मर चुके हैं, वो जो उठाए जाएंगे, उनको दर्शाता है. मूसा नियम और कानून को भी दर्शाता है. हालेलुया. मूसा मरे हुए लोग, जो विश्वास में मरे हुए लोग हैं, उनको दर्शाता है, और नियम और कानून को भी दर्शाता है. और एलिहा किस बात को दर्शाता है? जो लोग मरे नहीं है, मतलब हम अब जो जिंदा है, जो बदल जाएंगे, will be transformed in the blinking of an eye, वो उनको दर्शाता है. एलिहा भविष्यद्वक्ताओं को भी दर्शाता है. That means the law and the prophets, that's what they fulfilled. The transfiguration was all about them, and Jesus on top, in the middle of them, was meaning He is the Son of God. Hallelujah. ये वो दृश्य था. फिर आगे वो जब कहते हैं कि किसी को मत बताना, किसी को क्यों नहीं बताना? जब तक प्रभु का मनुष्य का पुत्र जीवित नहीं हो जाता, मर के जीवित नहीं हो जाता, तब तक मत बताना. क्यों? क्योंकि उनका समय नहीं आया है मसीहा की पदवी हासिल करने का. वो मर के जीवित होने के बाद ही उन्हें वो मिलने वाला था. हालेलुया. इसीलिए कहा जब वो वक्त आएगा तब तुम्हें पता चलेगा कि मैंने ये सारी चीजें, इसका प्रमाण तुम्हें दे रखा है. I have already given you a proof of who I am. Hallelujah. Then comes what he says. Why do the teachers say that Elijah has to come first? और उसका भी खुलासा आज हमने कर दिया कि एलिया जब प्रभु कहता है आ चुका है, और एक एलिया वहां पर कहता है कि आने वाला है, कि ये दो एलिया हैं, ये दो बार आएगा? वो नहीं. उसकी मिनिस्ट्री एक बार सेम टाइप का मिनिस्ट्री है, लेकिन एक बार वो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के माध्यम से आ रहा है, और दूसरी बार वो खुद एलिया के माध्यम से आ रहा है. हालेलुया. और दोनों का काम यही है, दोनों की सेवकाई का कारण यही है कि मन को फिराना है. हालेलुया. किसका? यहूदियों का. लेकिन हम भी यहूदी हैं, हम आत्मिक यहूदी हैं. हालेलुया. जो परमेश्वर यीशु के कारण इज़राइल से जुड़े हैं. हालेलुया. Remember this. So it is for us as well. If we have heard the word today, let us not
harden our hearts. Let us transform it. Let us change it. मन फिराते हैं. आज हमने सच्चाई सुनी, आज हम मन फिराते हैं. हालेलुया. देखिए, प्रभु हमें बार बार ये बातें कह रहा है. बहुत कम दिन बाकी हैं. हम बहुत तेजी से अंत के दिनों की तरफ बढ़ रहे हैं. बहुत तेजी से. वो एक बेलगाम ट्रेन की तरह है जो ढलन पर है. इट्स ऑन द डिसेंट. और यकीन मानिए वहां पर उस ट्रेन के बोगियों को ब्रेक नहीं है. तो सोचिए वो कितने तेजी से बढ़ता होगा नीचे की तरफ आने के लिए. उसी तरह से अंत के दिन भी प्रवेश कर रहे हैं बिना ब्रेक के ट्रेन की तरफ. और वो ढलन पर है. इट्स ऑन अ स्लाइड, इट्स ऑन अ स्लोप, and it's hurtling towards us. We heard the truth today. Will that be sufficient to turn our hearts? Let's bow our hearts before God today. Hallelujah. उससे पहले मैं आज का ये बंद करने से पहले मैं सभी जो हमारी जो 10th के स्टूडेंट्स थे जिनके रिजल्ट आज निकले हैं, खास करके रोशन, महिमा, आपको मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा. Congratulations on your scoring. Mahima, I believe, scored about 91% and Roshan scored around about 50 odd %. Praise God for that. God bless you all, and all those whom I don't know but have passed. Congratulations to all of you. May God bless you with every desire of your heart according to His will. Hallelujah. Let's close in prayer today. पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु इस सुंदर दिन के लिए प्रभु जो तूने हमें दिया है. आज प्रभु पिता ये जो हमने सच्चाई सुनी प्रभु, यकीन मानते हैं कि हमारे दिलों को तूने छेदा है प्रभु आज. और इस तरह से प्रभु कि हमें यकीन हो चला है प्रभु कि हमने मन फिराया नहीं है अभी तक प्रभु. हम मन फिराना चाहते हैं प्रभु. हमें सहायता कर प्रभु, मदद कर हमारी प्रभु, ताकि हम उन दुनिया के चीजों में, दुनिया के चीजों से व्यस्त ना हो सके प्रभु. तेरे साथ, तेरे वचन में प्रभु अधिक से अधिक समय बिताएं. तेरे प्रार्थना में प्रभु, हमारे भाई बहनों के लिए प्रभु हम प्रार्थना में समय बिताएं पिता. तेरे और करीब आए पिता. हमें आशीषित कर प्रभु. हमें तेरे हर उस आशीष से नवाज प्रभु जो तूने हमारे लिए तेरी योजना में रखा है पिता परमेश्वर. तेरी योजना ही हमारे जीवन में सफल हो प्रभु. हमने बहुत सारी योजना हमारे लिए बनाई है प्रभु, लेकिन प्रभु तेरी योजना, तेरा वचन कहता है हमारे लिए उज्जवल भविष्य देने के लिए है, लाभ के लिए, हानि के लिए नहीं है प्रभु. तेरी योजना हमारे जीवन में सफल हो प्रभु. Your will come true. Your will be established in our lives, Lord. Father, we once again ask you for forgiveness, Lord God. And we repent with all our hearts, oh Father God, today, that what we have heard has convicted us, Lord God. And we turn back to you, Lord. Heal our hearts, Lord. Heal our lives, Lord. That truly we may be worthy to be called your disciples, Lord God. That we may be good witnesses for you wherever we go. Lord Jesus, we once again thank you as we spend this time in your word, Lord God. For all those, for the rest of the time, O Lord God, we surrender into your hands. Bless each and every one who's gathered here today, Lord God. Let your will be established in their lives. I make this prayer in the mighty and precious name of Jesus Christ of Nazareth. And all God's people say, Amen. तो शालोम फिर से एक बार आप सभी को धन्यवाद.